Good morning, children. So in the previous class, we have studied some of the things. That is, we are studying about the properties of living beings, and we have studied so far. That is the growth and development, movement and locomotion. That we have studied response to stimuli. And चलिए इसके आगे का पढ़ते हैं. That is reproduction भी हमने पढ़ लिया है ना. Reproduction भी हमने पढ़ लिया. और जो नेक्स्ट चीज है वो देखते हैं. That is one was metabolism. Metabolism is defined as the sum of all the chemical reactions or chemical processes which are taking place in our body. Sum of all the chemical processes which are taking place in our body are collectively known as metabolism. Now, why chemical reaction? Why we have to have chemical reactions in our body? See, whatever type of things are taking place in our body, may it be respiration, may it be photosynthesis, may it be growth, formation of new cells, formation of protein, breaking down of food, or the burning of food, or making the simple amino acid join together to complex protein or DNA or RNA, copying of DNA, copying of RNA, whatever type of things are there, all these are because of some type of chemical reaction. So if suppose I say, if a child is growing, that means he has to make so many new cells. So when he has to make new cells, very first thing he requires new set of DNA. New set of DNA, that is by the copying of the old DNA. Okay? And then for that there will be several enzymes required. So that enzymes are required. That is, two enzymes need to be made. Okay? Similarly, when the cell organelle is required to be made, so they are made up of some proteins, carbohydrates, fats, etc., etc. That will also be required to be synthesized, and then new cell membrane will be synthesized, which is, membrane is made up of lipids and proteins. So all these things are required to be made. Glucose is required to be broken down into the several steps, finally into carbon dioxide and water. So all these are called chemical reactions, and all these chemical reactions are collectively known as metabolism. So living beings we cannot imagine a living being without metabolism. Living beings तो metabolism से ही होंगे, chemical reaction से ही होंगे. It is a chemical reaction. It is unlike this mouse. This can work. दिख नहीं रहा होगा आपको. This mouse is not having any more chemical reaction now. जो बन गए, जो chemical चाहिए जो हो गया. अब ये सिर्फ physical process है. It is only working on the physical process. It will release some of the radiations, and these radiations will strike to the surface and then reflect it back, and they will be guessed, है ना. और उससे मालूम पड़ेगा कि भाई कितने डिस्टेंस पे जाना है, क्लिक करेंगे वो होगा. So all those are physical processes. There are several physical processes which are taking place around us. Increase of temperature, or working of fan, working of light, और बहुत सारे प्रोसेस जो हमारे आसपास हो रहे हैं, they all are physical processes. But in the body, most of the processes which we are having are all chemical processes. ठीक है? There are physical processes like breathing is totally physical. अपन ने पढ़ा कि थोड़े टाइम पहले we studied about breathing. Breathing was depending on some of the physical phenomena, that is pressure difference and partial pressure, etc., etc. वहाँ हमने देखा था diaphragm contracts, intercostal muscles contracts, and the volume of the chest cavity increases, and the pressure at the air in the lungs cavity decreases, and the air fills in it. All those were physical processes. But we are talking about chemical processes. So living beings are having so many different types of chemical reactions which are involved in formation of some type of chemicals like enzymes, some DNA or RNA, some other type of substances, RBC, WBC, platelets, various type of pigments, and etc., etc. All those are chemicals. और ये सारे chemicals को बनाने के लिए हमको कुछ chemical processes की जरूरत पड़ेगी. And all those chemical reactions are collectively known as metabolism. Now, metabolism are the chemical processes which are involved in metabolism are of two types. One is the breakdown reactions, and second is synthesis reaction. Breakdown reaction is when large chemical molecule is broken into the simple molecules. Breakdown is with the large chemical molecule is broken into simple molecules. Okay? And synthesis also is the one in which the smaller molecules combine to make large molecules, synthesize to make large molecules.
ब्रेक डाउन ऑफ मेटाबॉलिज्म वाला जो प्रोसेस है उसका सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज व्हाट यू कॉल respiration. C6H12O6. It's a complex molecule. 6 carbon and 12 hydrogen and 6 oxygen. This will be burned in presence of molecule 6 molecule of oxygen and they will break into smaller molecules like 6 carbon dioxide plus 6 molecule of water. ठीक है? So now यहाँ 6 कार्बन थे, यहाँ एक कार्बन वाले 6 टुकड़ों, यहाँ 12 मोलिक्यूल हाइड्रोजन थे, तो वो 2 हाइड्रोजन वाले 6 मोलिक्यूल में टूट गए, तो ये ब्रेक डाउन हुआ है ना. There are several breakdown processes are taking place in our body. Several, कई सारे डिफरेंट टाइप के ब्रेकडाउन प्रोसेस हमारे बॉडी में होते हैं. अच्छा, एक बात समझ लेते हैं यहाँ पे कि मेटाबॉलिज्म वही प्रोसेस है जो सेल के अंदर होते हैं. ठीक है, there are several processes which are taking place outside the cell. They will not be considered the metabolism. So for that sake, even the digestion of food is not considered as a metabolism in our body, because in our body digestion is taking place outside the cell in the digestive system. Okay, तो हम उसको मेटाबॉलिज्म कंसीडर नहीं कर सकते और उसके वेस्ट को मेटाबॉलिक वेस्ट भी नहीं कह सकते. तो उसका हम एक्सक्रीशन भी नहीं कहेंगे, उसको इजेशन कहेंगे. तो ये जस्ट रिमेंबर दैट. ओके, अदरवाइज जैसे फॉरेन बॉडीज आ गई हमारी बॉडी के अंदर, कई सारे फॉरेन बॉडीज आ जाती है ना, फैगोसाइटोसिस हो रहा है, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं. सेवरल मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू बी ब्रोकन डाउन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है, कुछ टाइप के प्रोटीन्स आ गए. अब मान लीजिए कोई आदमी 10 दिन का भूखा है, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन का, कैसे भी भूखा हो हमारे, अब वो नहीं खाना खा रहा है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जिंदा तो रहना है. महात्मा गांधी जी थे, बहुत सारी जिद पड़ जाते थे, नहीं खाऊं खाना. छोटे बच्चे होते हैं जैसे आप लोग भी शायद ऐसे करते हो, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं. छोटे बच्चे क्या होते हैं, जैसे उनका कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, मम्मी जैसे बात नहीं मानते, मम्मी आज मैं खाना नहीं खाऊं. ठीक है, बोले बात. पत्नी भी पति से नाराज है, खाना त्याग दिया, अन्न जल त्याग दिया, मैंने आपसे खाना नहीं खाऊं, तुम्हारे घर का खाना भी नहीं चाहिए. अभी कितने दिन रह सकते? पति अगर निष्ठुर होगा, नहीं मानेगा, पता मेरे क्या, हाँ, 1 दिन 2 दिन ये चल नहीं सकता. लेकिन कई जने व्रत उपवास पे बैठ जाते हैं, इसी जगह की आदतें जो घर की आदतें होती है उसको लेकर सड़क पा जाते हैं और वो व्रत उपवास पे बैठे. व्रत उपवास पे बैठ जाते तो महात्मा गांधी जरा जरा सी बात, अंग्रेज कपड़े नहीं लेने, हम अंग्रेजों ने नमक का दाम बढ़ा दिया, सत्याग्रह उपवास. तो वो उपवास में क्या होता था, यूज्ड टू सिट fasting for 5, 5, 6, 6, 10, 10 days. Now, if you fast for 10 days, you are not getting energy. जिंदा तो रहना है, बॉडी पे मरने के लिए थोड़ी बनी है. प्रतिष्ठा क्या हो रहा है, आ रही जा रही, आ रही जा. तो हाँ, क्या कह रहा था मैं, हाँ, जिंदा तो रहना है, तो बॉडी क्या करती है, देन बॉडी स्टार्ट किलिंग इट्स ओन सेल्स. बॉडी प्रेफरेंस देखती है कि भाई कौन सी सेल जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट. सबसे पहले तो फैट को, पहले तो सबसे पहले ग्लाइकोजन को यूज कर ले. ग्लाइकोजन विल फिनिश इन अ डे और 2 बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी. फिर उसके बाद क्या है, बॉडी विल स्टार्ट यूजिंग फैट. तो जितनी चर्बी है ना हमारे यहाँ पे कमर में जमी हुई है, बम्स पे, थाइस पे और वहाँ पे चेस्ट पे, ये चर्बी को यूज करेगी बॉडी. वंस द चर्बी विल आल्सो बी ओवर, देन बॉडी विल स्टार्ट यूजिंग those molecules which are of less importance. ठीक है, बॉडी देखती है कि भाई ये प्रोटीन्स क्या काम आ रहे हैं. चलिए, जब व्रत में बैठे हैं आप, काम ही कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए, तो बॉडी विल स्विच ओवर एंड कंज्यूमिंग दीज प्रोटीन्स, मसल्स. बॉडी विल स्टार्ट ईटिंग अप द मसल्स. तो यहाँ प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रही है. पहले ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, कैटाबॉलिज्म. ठीक है, ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस का कैटाबॉलिज्म. एंड सिंथेसिस प्रोसेस आर कॉल्ड एनाबॉलिज्म. ठीक है, तो सबसे पहला कैटाबॉलिज्म हुआ किसका, ग्लाइकोजन. देन लिपिड्स विल बी कैटाबोलाइज्ड, देन फैट्स विल, प्रोटीन्स विल बी कैटाबोलाइज्ड. अब अगर उसके बाद भी आप नहीं मान रहे हो तो फिर मर ही जाओ, फिर बॉडी सरेंडर कर देती है, बोले ओके दैट्स ऑल, है ना. तो ये है, तो बॉडी कैटाबॉलिक रिएक्शंस करती रहती है.
There are so many different type of catabolic reactions are taking place. I have given you some of the examples. Next is the anabolic reaction. Anabolic reaction in which the smaller molecules are combined to make large molecule. Now, we have studied the digestion is taking place in our body. Digestion. And what are the end products of the digestion? End products of the digestion were amino acid, fatty acid, sugars, nucleotide, क्या थे? Amino acid, fatty acid, sugar, nucleotide, on nucleoside, or rather pentose sugars, ribonucleoxide, nitrogen bases. नाइट्रोजन बेसिस 5 तरह के थे एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन एंड फॉस्फेट अब पूरी बॉडी को इन्हीं चीजों को यूज करके बनाएंगे हमारे just now I said whenever the growth is to be required whenever the new cells are required whenever old cell is to be replaced तो क्या करेंगे बॉडी क्या करती है इन्हीं चीजों को पिरो लेती है और माला बना लेती है आपने देखा होगा जैसे माला बनाते हुए किसी को मोतियों की माला बनाते हुए देखा he has got the lady has got one needle and a thread है ना then she picks one white flower फिर उसके बाद 2 येलो फ्लावर फिर एक रेड फ्लावर हैंग कर करके डिजाइनर दैट इज द गार्लिन शी ऐसे बॉडी जो है अमीनो एसिड फैटी एसिड शुगर ये को मिल करके अलग अलग तरह की चीजें बना लेती है व्हाटएवर टाइप ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड सपोज डीएनए इज रिक्वायर्ड टू बी मेड तो डीऑक्सीराइबो शुगर है ना एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन टाइप के नाइट्रोजन बेसिस एंड phosphate molecules they will be used to make various type of nucleotides and nucleotides will be combined to make polynucleotide that is DNA or RNA ओके तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू बॉडी कैसे बनाती है तो यहाँ कुछ चीजें बन रही हैं नई चीजें बन रही हैं दैट इज membranes will be made membrane that is several enzymes will be made there are several ठीक है complex molecules are made और आफ्टर डाइजेशन जब बॉडी ने क्या खूब सारा ग्लूकोज इकट्ठा कर लिया लॉट ऑफ शुगर इसको आपने दूध जलेबी खा ली नाश्ते में बहुत दिनों बाद आप बाजार में निकले सुबह और आपने देखा ओह दूध जलेबी मम्मा आज तो शंभू के वहाँ गए और दूध जलेबी तो आपने कहा कि भाई खुद तो भी जलेबी थी हाँ तो उसने वो लिया बना कर ये लसा आपने दूध जलेबी खाया लॉट ऑफ शुगर अब वो शुगर क्या होगा आफ्टर डाइजेशन दे विल ब्रेक इनटू ग्लूकोज नाउ यू कैन नॉट होल्ड दैट मच ऑफ शुगर इन योर ब्लड अगर आपके ब्लड में शुगर का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो आपको डायबिटीज हो जाएगी पर हमको डायबिटीज होने के लिए थोड़ी बने सो व्हाट आवर बॉडी डू आवर बॉडी विल जॉइन दिस शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू मेक ग्लाइकोजन एमिनो एसिड अगर बने जैसे हमने कभी दाल खाई है मटर खाई there are soybean and many other type of things, egg, fish, meat, etc. So that all will change into amino acid after digestion, and these amino acids will be combined to make different type of proteins, maybe of hair, maybe of pigments, जो color आ रहे हैं ना, इसके लिए और इसके अलावा muscles के लिए, इसके अलावा enzymes के लिए, इसके अलावा there are so many different type of hormones are there, and then अगर हम बिच्छू वगैरह में जहर होता है तो वो भी प्रोटीन का बना होता है ऑल दीज आर एक्चुअली मेड बाय रिकंबाइनिंग अमीनो एसिड फैटी एसिड्स एंड फैट्स एटसेट्रा तो हम मेरे को क्या कह रहे हैं मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना है कि बॉडी में दो तरह के प्रोसेसेस हमेशा होते रहते हैं ऑल द टाइम दे आर ब्रेकडाउन एंड दे आर सिंथेसिस इफ इट इज अ लीफ सपोज इज अ लीफ क्योंकि लीव्स तो प्लांट का प्लांट के लिविंग होते हैं सो दैट मेटाबॉलिज्म completely हो जाता है we are talking about living things not of human beings so this is the leaf now in this leaf मैं इसको दो में डिवाइड कर देता हूं and here photosynthesis is taking और here respiration is taking photosynthesis में क्या हो रहा है 6 molecule of carbon dioxide plus 6 molecule of water in the presence of light
and chlorophyll is making one molecule of glucose plus 6 molecules of oxygen. Here 6 molecules of oxygen will combine with one molecule of glucose and it will result in the formation of 6 CO2 plus H2O. Simultaneously, both the processes are taking place. Is there any difference? Is there any difference? Huh? ये 6 carbon dioxide 6 water, 6 carbon dioxide 6 water, और 1 glucose and 6 oxygen 1 glucose. ये process यूज चल रहा है, चल रहा है. That process is anabolism. This process is catabolism. So catabolism and anabolism can take place simultaneously in a cell, in a plant, in a body. ठीक है? और it may take place in a different manner. ठीक है? किसी जगह पे कुछ हो रहा होगा, किसी जगह कुछ हो रहा होगा. But the simultaneous, मतलब both the processes are continuously taking place. हमारी body को अगर जिंदा रहना है, तो they have to have all this thing. I think metabolism is clear to you. What is meant by metabolism? आपको समझ आ गया? If anyone understood, not understood, तो आप यूं कर दीजिए, और अगर understood तो आप यूं कर दीजिए. Let me see if how many of you are actually listening to me. Dimple, up or down? So हमने तो up बोल दिया. Samya, have you understood or not understood? Pratishtha, I spice did it. Sometimes you are in, sometimes out. Dimple ने कहा yes. Yuvika, what do you think? Metabolism is clear. Okay, good. Pratishtha. What is a Yuvika and Samya? Two responses I did not get yet. No problem. ज़्यादा जनों ने हाँ बोल दिया तो इसका मतलब नहीं किया. तो these are metabolism, है ना? Metabolism जो है वो chemical reactions है, chemical processes है, होती रहती है बॉडी के अंदर, है ना? और हम जो है वो because of chemical processes के कारण जिंदा है. We are alive because of those type of chemical reactions which are taking place in our body, continuously taking place in our body, which are necessary in our body. ठीक है? जब हम नहीं होंगे ये प्रोसेसेस तो हो सकता है मर सकते हैं, हो सकता है हमें कोई डिफेक्ट आ जाए. ओके, तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म. नाउ नेक्स्ट एक चीज हम पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं दैट इज होमियोस्टेसिस. रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया ना, रिस्पांस भी पढ़ा दिया, रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया, मेटाबॉलिज्म भी पढ़ा दिया. अभी एक चीज जो काम का है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं. वो है होमियोस्टेसिस. Homeostasis, where the homeo means constant, same or steady. S-T-E-A-T-Y, steady. And status मतलब क्या है? Status का मतलब क्या? Status और state. आजकल status तो सब लोग बच्चे बड़े जानते हैं. Now, what is meant by steady state? Steady state का मतलब क्या है? Steady state मतलब जैसे थे वैसे ही है. ठीक है? लिविंग बीइंग की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को जैसे थे वैसे ही मेंटेन रखना चाहते हैं. एज इट वाज इट वुड लाइक टू मेंटेन इट इटसेल्फ इन दैट सेम. और मैंने आपको शायद पहले भी बोला होगा, अगर जिस दिन ताजमहल की देखभाल करना बंद कर देंगे ना, तो वो सब खंडर हो जाएगा थोड़ी देर. ठीक है? इट मे बी एज एक्सपेंसिव थिंग. और मैंने आपको बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज के एग्जांपल बताए थे, चाहे उससे मैंने आपको कारों के नाम बता देते हैं भी 2 करोड़ रुपीज 5 करोड़ रुपीज की आप कार लिए हैं, लेकिन आप उसकी देखभाल बंद कर दीजिए, थोड़े टाइम में खराब हो जाएंगे. You make any good building, but if you stop taking care of it, it will spoil. If you have any good amount, मतलब variety of clothes, if you will not take care of it, it will spoil. है ना? या तो धब्बे पड़ जाएंगे, दाग लग जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, या वैसा रस्टी सा हो जाएगा, या फिर वो फट ही जाएगा. ठीक है? कीड़े लगे तो things has to be maintained. Things has to be maintained. So in the previous class I said, suppose I am standing alive in front of you अभी, और मेरे में से कोई स्मेल नहीं आ रही, पसीने की भी नहीं, है ना? तो जो कि अगर मैं अभी मर जाऊं यहाँ पे खड़ा थोड़ी देर के अंदर टपक जाऊं नीचे, and nobody is to take care about me, मरी हुई बॉडी को यहाँ से हटाए भी नहीं, तो पता भी नहीं पड़ेगा. दूसरे दिन पता पड़ेगा, दूसरे दिन तो पता पड़ ही जाएगा.
Why? Because the body will start smelling. Anybody will come to know कि यहाँ पे कुछ मरा है। तो कैसे मालूम पड़ रहा है कि वो मरा है? मरा है क्यों? बिकॉज उसकी बॉडी में डिसइंटीग्रेशन, डिकम्पोजिशन होने लगे। डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन जो है दैट इज अ टाइप ऑफ एक डिसऑर्डरलीनेस, एक तरह का प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी हमेशा जो है वो राइज करती है और एनर्जी हमेशा कम होती जाती है ना। होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो एंट्रोपी को हराता है ना, इट मेंटेन द एंट्रोपी। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी स्टडी स्टेट में बनी रहेगी। मींस if your body has got 70% water, say for example, the water will be maintained more or less at 70%. ठीक है, अभी ये कम हो सकता है, it may go up to 67% और it may rise, आपने खूब पानी पी लिया तो it may be 70-73% तक जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली तो यही आकर रुकेगा। If there is excess of water, it will be given out in the form of urine or sweat. If it is less water, your body will absorb more water from your urine. ठीक है? अगर टेम्परेचर ज्यादा हो, हीट ज्यादा हो, गर्मियों के मौसम हो, तो फिर क्या होता है? अगर आपका बॉडी के सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो गया and body will be feeling hot, then what will do? You will start sweating. Sweat क्या करता है? It will take the heat from the body and it will make you cool, मतलब you will cool your body. तो ये बॉडी का अंदर का प्रोसेस है। आप क्या खुद कहते हैं क्या? डू यू हैव एनी मैकेनिज्म टू स्टार्ट स्वेटिंग? नो। कैन यू स्टॉप स्वेटिंग? अगर आपको स्वेट आ रहा है तो क्या आप रोक देंगे क्या? नहीं रोक सकते। ये बॉडी का इंटरनल प्रोसेस है ना। भूख लगता है, खाने ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ऑटोमेटिकली वी फील हंग्री एंड वी गो एंड ईट समथिंग एंड अगेन द ग्लूकोज लेवल इज मेंटेन्ड। If somebody is putting bright light into your eyes when you are traveling in the night and somebody uses high beam, वो भी projector light सीधी आपकी आंख में आती है and आप एक सेकंड के लिए ऐसे देखा and then you are able to see। पिक्चर हॉल में गया, भरी दोपहर में 2:30 बजे वाला सीन देख रहे हैं, शो देख रहे हैं, 2:30 बजे वाला भरी दोपहर में, गर्मियों के दिन, मई का महीना। Outside, the sun is in its peak. You were on bike, running through all the bright light. As you enter in the hall, you are able to see nothing, and you have to, you know that you got a H5 is your seat, and you know where is the H, है ना? और आप वहाँ तक जा रहे हैं और 5th नंबर की सीट तक जाते जाते you step on someone's foot and then it starts showing all the colors. ठीक है? Now why you are not able to see? Because when you were traveling with a bright light, your pupil will fully constricted and allowing only very less amount of light to enter in the retina. और जब आप बाहर आ गए हैं, अंधेरे में चले गए हैं, तो आपकी लाइट कम हो गई, तो the pupil has to expand to the maximum so that it allows maximum light. रात को जब आप सो के उठते हैं तो वो जो टीवी का इंडिकेटर है ना, टीवी किसी भी चीज का, आजकल एसी चल रहा है, एसी का स्टेबलाइजर का इंडिकेटर होगा। विथ दैट लाइट यू आर एबल टू सी कर्टन इज हैंगिंग देयर और जैसे वॉल क्लॉक इज देयर और कैलेंडर इज देयर, यू गेट समथिंग। अब याद कीजिए कि आप 9 बजे कुछ सीरियल देख रहे हैं और अचानक से लाइट चल जाए और आपका इन्वर्टर भी नहीं काम करता and it turns exactly dark. You will not be able to see anything in that darkness. And suppose you go in search of candle, तो क्या जमाना बदल गया है, एग्जाम्पल पुराने जमाने के हो गए, मैं दिया करता था। अब तो सबके पास मोबाइल है, सबके घरों में इन्वर्टर है, तो ये तो बकवास हो गया एग्जाम्पल। तो suppose you go for searching candle, जो दादाजी will stop you, बोला अरे बेटा रुक, 1 मिनट रुक जा। 1 मिनट रुक जा क्यों? 1 मिनट में लाइट आ जाएगी क्या? आपको फोन आया क्या? नहीं, दादाजी को कोई फोन नहीं आया। बट एक्चुअली दादाजी नोज कि आफ्टर अ मिनट योर आईज विल अकस्टम, योर प्यूपिल विल एक्सपैंड एंड इट विल अलाउ टू सी यू और मेक यू सी इवन इन द डलेस्ट लाइट। थोड़ी सी भी जो लाइट है, पुराने जमाने में क्या होता है ना, तो बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, छोटा था तब की बात,
है ना। मैं छोटा था और आप छोटे हैं, में बहुत फर्क है। मैं जब छोटा था, आपकी उम्र के मान लो, हाँ, आपकी उम्र का था तो मैं आई यूज्ड टू बी विलेज समटाइम, छुट्टियों में कभी घर और में चल जाते थे। तो नाइट नो स्ट्रीट लाइट, विलेज में कहाँ स्ट्रीट लाइट, इक्का दुक्का लाइट या वहाँ लगे रहते, रेस्ट ऑफ। So these the villagers, when they used to return back to their home, they used to always keep a BD with them. ठीक है, that BD light was more than enough for them to see where they are walking, where the ditch is there, where the snake is there, where the dog or any other animal is there. वो लाइट से उनको दिख जाता था पूरे अंधेरे में। That much हमारी pupil इतनी एक्सपैंड हो जाती है, letting the least of least light to reflect into our eye and make us able to see. Homeostasis, ये हमारी बॉडी का अपना खुद का सिस्टम है। It is a system which is preventing our retina from getting damaged. Our retina from getting damaged. So if there is more light entered in your eyes, your retina may get damaged. So in that case, the pupil है वो fully constrict हो जाती है, तो थोड़ी सी छोटी सी छेद रह जाएगी उसमें, and letting the least amount of light to make you see in that. So that happens when the bright light, अभी मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँगा तो मेरे को ऐसा होगा, लेकिन अगर मैं किसी अंधेरे कमरे में चल जाऊँगा तो for a minute I will not be able to see anything. और अगर ब्राइट लाइट से अंदर, मतलब आप सो रहे हो, सो के अंदर रजाई के अंदर मुंह उठा करके सो रहे हो और अचानक से मम्मी लाइट ऑन कर दे और आपका रजाई निकाल देते, अरे मम्मी ये क्या कर दिया, मम्मी मेरे को दिख नहीं रहा। So your pupil is that time fully expanded because there was least light, and जैसे ही bright light आई ऊपर से वो जो है कस्टम होने लगती है। So these are the various type of mechanism which is found in our body. May it be glucose level, excess glucose will convert into glycogen. When glucose level is less, glycogen will break back into glucose and maintain the steady level of glucose. May it be water, when more water is there, excess water will be given out in the form of urine. And when there is less water, so you start metabolizing, more water will be used, and you will even absorb the water, your kidneys will absorb the water from the PCT and will add into the blood, so that your body will get enough of water. The same thing is there with the other processes. ठीक है, तो हर जगह पे आपकी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है। धूप में अगर हम काम करने लग जाएंगे, मान लीजिए दो भाई हैं, मोहित और सोहित। मोहित और सोहित जो है वो दोनों बिल्कुल जुड़वा ब्रदर, एकदम गोरे, एकदम गोरे, मतलब एकदम गोरे, मतलब जैसे लड़कों का गोरा रंग होता है वैसा। अब मान लीजिए वो दोनों जो है स्टडी करें, एक इंजीनियर, एक ने इंजीनियरिंग करा है ना, क्या कहते हैं, क्या करते हैं बी एंड एम ए, है ना, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर, और दूसरे ने जो है MBA कर लिया। MBA वाला तो मैनेजर बन गया, ऑफिस में बैठा है, और इंजीनियर जो है वो रोड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गया, है ना। अब उसको रोड का इंस्पेक्शन करना है, ऑल द टाइम इज ऑन द रोड, so he is getting sunlight, and the other one who is sitting in the office, the AC, is never getting sunlight. कार से आना, कार से जाना, घर के अंदर सन नहीं आ रहा, कार के अंदर सन नहीं आ रहा, इसके अंदर सन नहीं आ रहा, वापस जा रहे हैं तब सन नहीं आ रहा, आ रहे हैं तब वो सन नहीं आ रहा, संडे को भी सन नहीं आ रहा because he is not coming out, so he is not exposed to sun, whereas his brother is always in sun. ठीक है, so he will turn black, and the brother, जुड़वा भाई उसका जो भी था दूसरा वाला, one who is working in the office as a manager, he is always in sun shade or in away from the sun, तो fair रहेगा। तो ये black color जो है वो बॉडी का मैकेनिज्म है मेलानिन, which is preventing the entry of ultraviolet radiation in the eye, in the skin, and preventing the cancer and other type of diseases to be caused. ये बॉडी के मैकेनिज्म, तो इन सबको हम जो है होमियोस्टेसिस कहते हैं। होमियोस्टेसिस द मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट। कंपेयर कीजिए, क्या आपकी कार को पेट्रोल की कमी हो जाए, खुद वो चली जाएगी पेट्रोल पंप पे, आपको भूख लगती है, आप खुद जाएंगे, फ्रिज खोलेंगे, देखेंगे कुछ खाने के लिए है क्या, आपको मालूम है बिस्किट के पैकेट मम्मी कहाँ रखती है,
आपको मालूम है नमकीन वमकीन कहाँ पर है, आपको मालूम है स्नैक्स हैं, where the Maggi packets are kept, you will take that and start making them and eat them. Your car at the most can tell you कि भैया पेट्रोल कम हो गया, मैं थोड़ी दूरी और चलूंगी उसके बाद मैं रुक जाऊंगी, so search for a petrol pump and fill my tank. वो भी केवल अच्छे वाले कार हैं, अच्छे आजकल तो हर कार में आ गए हैं फीचर, बड़ी भी सो दे आर द मैन मेड थिंग, अदरवाइज दूसरी चीजें कहाँ पर। नदी में पानी कम हो जाएगा तो क्या, या तालाब में या डैम में पानी कम हो जाएगा तो क्या वो आपको बोलेगी क्या डैम में पानी कम हो गया भाई पानी भर दो, नहीं ना। So that is the thing, that is the advantage of homeostasis. So homeostasis is a unique property in our body. हमारी बॉडी की सबसे यूनिक प्रॉपर्टीज में से एक है होम्योस्टेसिस। ओके, तो आई थिंक अब क्या बचा, डेफिनेट लाइफ स्पैन हमने पढ़ा कि वही लिविंग बीइंग जो होते हैं उनकी लाइफ स्पैन एक फिक्स पैटर्न रहता है। डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने बताया होगा, शायद आपको बोला होगा कि आप कोई भी दो जगह, हाँ मैंने कहा था कहीं दो जगह से पत्थर लेंगे एक जैसा कंपटीशन नहीं होता, टू बिल्डिंग्स और टू मॉल्स और टू स्कूल्स और टू थिंग, they will not have the same type of structure. Two rivers are not always alike, two mountains are not always alike, so they all are variation, but living beings always have similarity. तो जितना भी ह्यूमन ले लीजिए, गरीब अमीर किसी भी देश से ले लीजिए, वहाँ दो ही आंखें होंगी, एक ही नाक होगी, 32 दांत होंगे, दो ही कान होंगे, खूब सारे बाल होंगे, यही यहीं पे होंगे, ऐसे नहीं कि यहाँ पे बाल होता है, ऐसे वाले नहीं, ठीक है। और आपको नहीं मिलेंगे, यही अरेंजमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं कि हम किसी का यहाँ लग रहा है जो यहाँ कुछ बड़ी है, ये छोटी, ये वाली छोटी हो गई, ये वाली बहुत बड़ी हो गई, ऐसा नहीं, यही रहेगी। So organization is definite. If we have studied a human being and we studied the digestive system as I explained you, हमने कहा 32 दांत है ना, inside the canine, premolars and molars and buccal cavity, esophagus, and then stomach and then small intestine, duodenum, jejunum, ileum and rectum. तो वही मिलेंगे आपको दुनिया में किसी भी जगह। You will not find a human being in which the mouth and सीधे एक ही anus बना दिया, not possible. You will not find कि किसी में intestine पहले और stomach बाद में है, नहीं, हो ही नहीं सकता। So organization is definite, arrangement is definite, living beings। कभी कभार हो जाता है था उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। Okay, that's all our children for today, and I hope you are studying and you must have prepared your project also. नहीं बनाया तो बना लीजिए, नहीं बनाया तो अपना प्रोजेक्ट बना लीजिए एंड सबमिट इट इन ऑन 31st नो नेक्स्ट सैटरडे, मतलब दिस सैटरडे, एंड प्रिपेयर योर टेस्ट तो सबको देना है। और मैंने आपसे बार बार कहा है उन बच्चों को जो कि नहीं आ रहे हैं क्लास में उनको बोल दीजिए, नहीं तो उनके नाम कट जाएंगे, दूसरे बच्चे ले लेंगे, बहुत सारे स्कूल के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। सेंट पॉल इज द ओनली स्कूल विच इज नॉट पुटिंग एनी प्रोपेगेंडा फॉर एडमिशन। यहाँ लाइन लगती है, अभी भी लग रही है, ठीक है। बाकी स्कूल वाले क्या है, मेरे मोबाइल में इतने सारे स्कूल वाले हैं, दे आर कीप ऑन पुटिंग देयर एड, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। Last month I went to one of the most reputed school in the city, बोलते हैं कि थोड़ा हमारे यहाँ तो स्विमिंग पूल भी है, हमारे यहाँ तो ये भी है, हमारे यहाँ तो वो भी है ना, वो वाले स्कूल में मैं गया और वहाँ पे मैं ऐसी बातें करते करते अच्छा एडमिशन चल रहा हूँ, अरे सर कभी एक आ जाता है कभी दूसरा आ जाता है, फिर उसको पूरा कैंपस घुमाना पड़ता है, प्रतिष्ठा 1 मिनट, तो उसको पूरा कैंपस घुमाना पड़ता है, मीन्स वहाँ ये हाल हो रहे हैं एडमिशन को, एंड हियर वी हैव टू रिफ्यूज, नो भाई देयर इज नो मोर सीट। तो बोल भी रहे थे बंदे के बोले आप लोग खत्म करेंगे तो फिर हमारे यहाँ आएंगे, तो ये है। ओके प्रतिष्ठा, आई एम गिविंग यू अ चांस टू स्पीक, you can unmute yourself and speak. सर बायो के कितने बच्चे हैं? बायो में कितने बच्चे हैं? हाँ, बायो में मेरे पास लिस्ट में तो 9 बच्चे हैं, पर यहाँ तो 5 दिख रहे हैं। आप एक दिन लिस्ट लेके आएंगे और सब, अब क्या एक दिन क्या लाएंगे, तो रोज अटेंडेंस लगाएंगे, ठीक है। ओके, सो एक बच्चा कौन है, वो कोई मालविया है ना, और बच्चे हैं
चौधरी और मैंने कभी देखा नहीं उन बच्चों को क्लास। they were never present in the class. So anyway, but we are strict with it. तो मैं भी करना नहीं चाहता, नहीं तो फिर वो बोलेंगे सर ये वो। ओके चलिए, दैट्स ओके, गुड डे, एंजॉय योर डे। दिन में कोई एक क्लास तो अटेंड कीजिए। हाँ, अगर आप फिजिक्स की भी अटेंड कर लेते हैं, वैसे पहले वाली क्लास भी अटेंड कर लेते हैं, तो दैट विल डू। कम से कम आपका नाम तो रहेगा लिस्ट के अंदर कि हाँ भाई बच्चा ने क्लास अटेंड की है, सब्जेक्ट की नहीं करी। कभी बायो की कर लें, कभी फिजिक्स की कर लें, कभी केमिस्ट्री की कर लें, एक चलता रहेगा। ओके, दैट्स गुड, चलें, एंजॉय योर डे।